So there is this third allotrope of carbon, and that third allotrope of carbon, other than diamond and graphite, is what we call buckyballs. Now, buckyballs were actually discovered in 1980s somewhere. और इसमें जो आपने याद रखना है, that is actually this part here, Buckminster fullerene, or in short, buckyball. And what you need to know is that a sphere or a structure like this made up of carbon will be regarded as buckyball. They're like footballs like structures, and they're made up of hexagon and pentagonal arrangement of carbon atoms. तो जो मेन पॉइंट्स एज आई सेड के इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स लिखी हुई है, जो मेन आपने चीज़ रखनी है याद वो ये, a diagram that you see like this given in exam, and if the question says this question is about the third allotrope of carbon, तो इस डायग्राम को देख के आपको आइडिया होना चाहिए कि दिस इज लाइक बकी बॉल और बकमिस्टर फुलरीन इसका पूरा नाम है. They're actually simple molecular structures, and they're made up of 60 carbon atoms or 120 carbon atoms, in fact, arranged in hexagon and pentagonal pattern. They're not macromolecular, or mainly because of their very, very small size, they're actually leading to very useful things in sciences, like जिसको हम कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी भी कहते हैं. बड़ी रिसेंट एक चीज़ है साइंस में, और वो सारा कार्बन के थर्ड एलोट्रॉप से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट. आप इसको ये पॉइंट्स जितने भी इधर लिखे हैं आपने इनको पढ़ लेना है. बट फॉर बकमिस्टर फुलरीन व्हाट यू शुड नो दैट दे आर simple molecular structures and not giant, and they are like different from diamond and graphite in terms of their structure. और दूसरा, ये जो इसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, ये they're like tubular structures. They're also made up of carbon arranged in a different tubular uh, like tube-like structures which are hollow inside, and they're used for many purposes like data conductivity में जैसे optical fibers होती हैं उसी तरह से अब ये carbon nanotubes use हो रही हैं. Again, you just need to read these points but not try and memorize all these. Again, from the diagram given like this, against the top one you should be able to figure out कि ये nanotubes हैं there, and the top one are like buckyballs. And the second thing is कि ये वाला जो structure है nanotubes का, they are like macromolecular, and they have delocalized electrons, and they resemble graphite in terms of their conductivity. And lastly, which is not as such required, but there is this general knowledge thing that third allotrope of carbon has been made into the shades of graphene. Graphene is a very strong material. It resembles graphite in terms of the arrangement of atoms like hexagon. लेकिन ग्राफाइट के अंदर तो आपने पढ़ा था कि the layers are arranged and separated by weak forces. इसमें ऐसा नहीं है. ये graphene sheets को they can put up together, and it makes up extremely strong surface structures which are actually used for so many things in sports industry, for example, या फिर वॉर इंडस्ट्री में जो फाइटर जेट्स हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं जो रेडार्स में नहीं आते, वो सारे ग्राफीन शीट्स के बनाते हैं. एज आई सेड के ये जो हैंड आउट है ये मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा. आपने इसको सारे पॉइंट्स नहीं याद करने की कोशिश करनी, इस बिट ऑफ टू मच टेक्स्ट ऑन इट. जस्ट द मेन कंपैरिजन पॉइंट्स, तीन तीन चार चार आपने इनमें याद रखने हैं. नाउ गोइंग बैक टू एयर एंड वाटर, जो कल मैंने क्लास में स्टार्ट में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, मैं उसको एक दफ़ा अब दोबारा शीट ओपन करता हूँ. अब जो मैं उसमें एयर एंड वाटर में चीज़ें एक दो ऐड करूँगा, वो आप perhaps like, but let me hold like एक दफ़ा देख लेने दें उस हैंड आउट में वो चीज़ें हैं या नहीं. जो लोग अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ क्लास की, आपने टेंशन नहीं लेनी. मैं शेयर कर दूंगा, बस आपको दोबारा देखनी पड़ेगी पूरी, और फिर इसको कैचअप कर लीजिए. एक बकी बॉल कार्बन का थर्ड एलोट्रॉप, इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया. दिस हैंड आउट आई पोस्ट इन द ग्रुप. एक सेकंड. चलिए, अब बेटा आप जो आपकी नोटबुक्स है ना, कल मैंने जो आपको क्लास में बोला था कि आप लोग नोटबुक्स निकालें, एयर एंड वाटर की हेडिंग दें, और उस पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे क्लास में रिगार्डिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और लिक्विफैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, और डिसल्फराइजेशन और फ्लू गैस ट्रीटमेंट. उसके आगे ये एक दो चीज़ें लिख लें, और फिर वो जो मैंने हैंड आउट शेयर किया हुआ ग्रुप में एनवायरनमेंट वाला, वो इसके बाद आएगा, एंड आई एक्सप्लेन दैट शॉर्टली.
So what you need to understand and remember is, अभी अली ये मैंने नैनो ट्यूब एक्सप्लेन किए हैं, आप थोड़ा सा स्लो रहते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं शेयर करूँगा, आप स्टार्ट से उसको देखिएगा। अभी आप यहाँ से आगे एयर एंड वाटर को स्टार्ट करें मेरे साथ। देखिए एयर एंड वाटर का जो नोट मैंने आपको क्लास में कल स्टार्ट करवाए थे, उसमें एक दो चीज़ें ऐड करें। देखिए वाटर से रिलेटेड आपने दो तीन चीज़ें याद रखनी है। वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, जैसे हमारा स्ट्रीम है या स्प्रिंग है या सारी जो जगह होते हैं, नेचुरल सोर्सेज से जो वाटर आता है, it has some useful and some harmful things in it. The useful things, and actually it contains oxygen for the fish, it contains essential minerals which are helpful for our body. But harmful things it contains are germs or bacteria and some toxic elements or metals and waste like sewage waste वगैरह वगैरह भी अब बहुत सारे waters के अंदर मिलता है. So what you need to remember is that the harmful part of the water has to be treated. That comes under the treatment of water. So treatment of water is done in different ways, and each way or method has a different objective actually. उसमें से एक दो मैं इधर लिस्ट आउट करूंगा, इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, लंबी छोटी चीज़ें नहीं आती. The treatment of water is done by different ways. One is that they just pass chlorine gas from it, and that is helpful to kill bacteria. In fact, जो मैंने शेयर किया था यूजेस का हैंड आउट, उसमें ये क्लोरीन का यूज लिखा हुआ है. तो यू शुड रिमेंबर दैट एट लार्ज स्केल, लाइक गवर्नमेंट स्केल पे जो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें to kill the germs and bacteria, they use chlorine gas and they pass it through the water. Secondly, water is actually passed through layers of gravel, small stones, and sand. That is just to remove, um, you know, most of the heavy metals which are present, like transition metals which are present. They actually, gravel and sand may, they add this calcium and that actually takes out those metals. Details of this process are not there in our syllabus, but just remember that water is passed through the layers of gravel and sand that actually takes out most of the toxic metals in it. And thirdly, water is actually passed from layers of charcoal, and that is actually porous carbon material. That is to remove the odor or smell from water. तो वाटर ट्रीटमेंट में हमारे सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक बाय नेम मेथड नहीं है. दे जस्ट हैव these two three things related to water के why water treatment is important. और कल जो मैंने आपको फ्लू गैस ट्रीटमेंट बताया था, उसके साथ ये चीज़ अब आपने नोट्स में ऐड कर लेनी है. सो although I'm recording this, but I'm sure कि ये वाली चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ इस पे ये आपने लिख लेनी है, बिकॉज जो मैंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पीडीएफ शेयर किया उसमें आप चेक, उसमें ये चीज़ नहीं थी. तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज डन बाय दीज टू थ्री वेज एट लार्ज स्केल इन इंडस्ट्री. अब इसके बाद जो है, आई विल मूव ऑन टू दैट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पीडीएफ, और उसमें मैं कुछ चीज़ एक्सप्लेन करूंगा. वो अब आपने इसके आगे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर ऑन दैट पीडीएफ. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो आपको मेन कॉन्सेप्ट्स याद रखते हैं ना, एयर एंड वाटर जिसको हम बोलते हैं, other than the one that we have covered so far, that includes global warming. फिर उसके अलावा जो ज़्यादा आता है वो एसिड रेन्स रिलेटेड क्वेश्चंस. फिर ये यूट्रोफिकेशन,
एंड कैटालिटिक कन्वर्टर्स, रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, ये सारे उस हैंड आउट में डिटेल में चीज़ें मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ. Other than that, we have these fertilizers, brief concept, and CFCs and ozone layer depletion, etc. वो अब इतना नहीं पूछते हो क्योंकि वो थोड़ा ambiguous concept है. So these are the things that one should know in addition to what we have covered so far in the air and water environmental chemistry concept. तो अब मैं वो PDF ओपन करता हूँ जो मैंने ग्रुप में सुबह शेयर किया था. Perhaps and I said you should note it down in your notebooks. नहीं भी किया तो वीकेंड में कर लें. अगर वो सॉफ्ट कॉपी में रह गया तो फिर आपको बाद में मुश्किल होगी. ठीक. All right, so here is this environmental chemistry and water handout. और इसमें शुरू में तो नाइट्रोजन सल्फर की डिटेल्स हैं, मैंने उस क्लास में पॉइंट आउट किए थे. बट the actual things start from here, acid rain part, right? अब एसिड रेन जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ये सब इधर लिखी हुई है, लेकिन इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. थोड़ी स्पेस आई थिंक एंड पे ये शायद इस PDF में. एसिड रेन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको आप समझ लें, और नोट करने की अब चीज़ों को जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है. दीज आर ऑल इजी एंड जनरल नॉलेज थिंग्स, बट इसमें से क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स के मार्क्स लूज होते हैं बिकॉज there are few tricky points that you need to really understand and add in your explanation. So acid rain का जो concept है उसमें क्या है कि all the industry and factories which produce all these harmful waste gases, which mainly include sulfur dioxide and nitrogen dioxide, and all the vehicles that we use transportation में, मतलब जहाँ जहाँ क्रूड ऑयल बर्न होता है तो वहाँ के उनके स्मोक से जो वेस्ट गैसेस निकलती हैं वो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ like sulfur is part of petrol as an impurity, and nitrogen dioxide is formed when nitrogen starts reacting with the oxygen at high temperatures and in all these places. The thing is कि जब ये oxides जाते हैं एयर में तो sulfur dioxide is not very reactive towards oxygen, but this NO2 is the naughty molecule. ये actually क्या करता है, इसको as a catalyst act करता है और NO2 convert करता है SO2 into SO3. So as SO3 is formed and when it rains, it combines with it and makes this sulfuric acid. So the catalytic role of nitrogen dioxide is कि ये NO2 को SO2 के साथ NO2 react करके it turns itself into nitrogen monoxide और SO2 को SO3 में change कर देता है. All these equations are written at the top. ठीक है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ. और जैसे ही SO3 बनता है तो SO3 combines with the rain water and that makes acid. रेन का जो फर्स्ट वाला पार्ट शुरू शुरू में आता है उसमें एसिड की अमाउंट प्रेजेंट होती है. दैट एसिड इज लाइक इट लीड्स टू द फिनोमेना कॉल्ड एसिड रेन. बट ये हर जगह नहीं होती. आई मीन सिटीज वेयर देयर इज टू मच ऑफ इंडस्ट्री, लाइक यूरोप में मैनचेस्टर इज फेमस फॉर दैट. लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी तो यूरोप के कुछ सिटीज़ में दिस फिनोमेना स्टार्टेड. तो हर जगह ये नहीं होता, और थोड़ी रेन के बाद वो एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो ख़त्म भी हो जाती है. This nitrogen monoxide formed again reacts with oxygen and it turns back into nitrogen dioxide और फिर ये काम शुरू कर देता है. तो the catalytic role of nitrogen dioxide in making of SO3 which causes acid rain is really important. बाकी एसिड रेन जहाँ पे हो रही होगी आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे सॉइल की पीएच एसिडिक हो जाएगी, वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी. फिर जो मार्बल और स्टैचू की बिल्डिंग्स हैं, जैसे जो कंक्रीट है उसके साथ रिएक्ट करेगा एसिड, उसको खराब करेगा.
स्किन इरिटेशन, एस्थमा के प्रॉब्लम, बड़े मसले होते हैं एसिड रेन में। सिटीज़ में रहना इज़ नॉट इजी। तो ये सारी जो मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन बताई है, इट्स ऑल रिटन हियर कि the oxides of nitrogen and sulfur produced by oxidation of these things lead to the acid rain. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डबल डेंजरस है। एक तो ये खुद भी डायरेक्ट वाटर से रिएक्ट करके HNO3 भी बनाता है, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन। बट देन नाइट्रोजन NO2 ऑल्सो एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, जो भी मैंने नीचे एक्सप्लेन किया। और वो क्या करता है कि SO2 को SO3 में ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म में चेंज करता है, एंड SO3 देन कॉजेज द मेन एसिड रेन। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के इश्यूज हैं बहुत सारे। एक तो ये एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करता है, डायरेक्ट खुद भी करता है, और ये जो NO2 बनती है इससे फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है, जैसे हमारे लाहौर में अब होना शुरू हो गया विंटर्स में, क्योंकि ये ब्राउन है। तो इसकी प्रेजेंस ना सिर्फ एसिड रेन करती है बट फोटोकेमिकल स्मोक को भी लीड करती है। तो नीचे फिर ये हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन भी लिखे हुए हैं कि जो डिक्रीज इन वेजिटेशन, एक फिश वगैरह को मसले होते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर नुकसान होता है। और ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है। अब यू रियली कैन नॉट डू मच अबाउट ऑल दिस। इनफैक्ट जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर फिर वो क्या करते हैं कि ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स के लिए जो आपने चीज़ें याद रखनी है वो मेनली ये कि the combustion of fossil fuel or crude oil would form harmful oxides along with carbon monoxide. आप जब पेट्रोल को बर्न करेंगे तो it would form CO2 and water that cannot be stopped. In fact उसमें CO2 का तो, वाटर का तो कोई मसला नहीं, लेकिन CO2 is weakly acidic. But this carbon monoxide formed, nitrogen's monoxide formed, if they are sent out into the air तो वो फिर ये सारा एसिड रेन वगैरह में कंट्रीब्यूट करते हैं। So what is done actually is that the cars are fitted with the catalytic converters which are made up of expensive metals like platinum and rhodium. तो आप लोगों से जो catalytic converter में expected है वो ये, students must know के why catalytic converter and where they are used, which metals are used for that, और फिर ये कि उनका काम क्या है। वो करते क्या है कि ये हार्मफुल ऑक्साइड्स जो हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, इनको आपस में रिएक्ट करके प्लेटिनम या रोडियम कैटलिस्ट, दे चेंज देम टू लेस हार्मफुल ऑक्साइड और नाइट्रोजन बन जाती है, दैट इज परफेक्टली फाइन। और पुरानी गाड़ियों में कुछ अनबर्न फ्यूल भी आता है, पेट्रोल आपने जो यूज़ किया होता है उसमें से कुछ फ्यूल बर्न नहीं होता। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं कि उस अनबर्न फ्यूल को भी बाहर जाने से रोकते हैं, बिकॉज ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं अगर ये भी एयर में जाएंगे पेट्रोल डायरेक्ट, तो ये फिर ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स मेनली तीन चीज़ों को निकाल रहे होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड अनबर्न फ्यूल पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, एंड दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट देम इनटू लेस हार्मफुल थिंग्स। तो इनकी इक्वेशंस भी याद रखें, लेकिन बहुत कम पूछते हैं, वो मेनली कैटलिस्ट का पूछते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर का रोल पूछते हैं, एंड व्हाट आर द हार्मफुल थिंग्स दैट इफ दे गो टू द एयर, तो उनसे मसले क्या होंगे। But remember, the catalytic converters are not 100% efficient. Even if the cars are fitted with these, तो कुछ ना कुछ हार्मफुल ऑक्साइड्स और चीज़ें जाती हैं। फिर कैटालिटिक कन्वर्टर जब गाड़ियाँ पुरानी होती हैं तो वो फिर इतना अच्छा काम नहीं करते, तो ये पोल्यूशन में चीज़ें ऐड होती रहती हैं इवेंचुअली। कोई क्वेश्चन किसी का होगा तो आपने इधर लिख देना, मैं पढ़ लेता हूँ साथ साथ। अब आ गया ग्लोबल वार्मिंग और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, मेनली टर्म ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये भी आसान सी चीज़ है, इसको मैं पहले नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ग्लोबल वार्मिंग में भी देर आर टू मेन गैसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और वो एक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा मीथेन गैस है। तो अभी लेट आए क्लास में, ये हैंड आउट PDF मैंने शेयर किया हुआ है ग्रुप में, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस समझ लेना और बाद में अपने नोटबुक्स पे वो उसको शिफ्ट कर दें। ग्लोबल वार्मिंग में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगेन हमारी जो अर्थ की सरफेस पे एटमॉस्फेयर है उसका एक सर्टेन टेम्परेचर है, क्लाइमेट है।
एंड दैट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय मैनी फैक्टर्स। एटमॉस्फेयर में जो एयर के अंदर जो डेंसिटी ऑक्सीजन नाइट्रोजन की ट्रेस गैसेस नोबल गैसेस की, वो एक सर्टेन डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। एंड देयर इज दिस सन जो एटमॉस्फेयर के बाद ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर और सारी जगहों के बाद ऊपर है। सन से रेज आती है अर्थ पे। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है? ग्लोबल वार्मिंग ये है कि अगेन हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, लार्ज स्केल पे कैटल फार्मिंग है, इनसे क्या होता है कि CO2 गैस इंडस्ट्री से भी बनती है, और जितने लार्ज स्केल पे कैटल फार्मिंग हो रही है वहाँ से भी CO2 गैस एनिमल जब रेस्पिरेशन करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अलॉन्ग विद दैट मीथेन गैस का जो मेन सोर्स है वो तो जो ओशन है, ओशन में जहाँ जहाँ क्रूड ऑयल वहाँ पे मीथेन गैस और वो बबल आउट होती रहती है एयर में। अलॉन्ग विद कैटल्स की जो है काउ डंग वगैरह, उसमें से भी डिकम्पोजिशन होकर मीथेन गैस बनती। बॉटम लाइन इज कि these two gases when they enter into the air they actually increase the density of the atmosphere। जब ये एटमॉस्फेयर की डेंसिटी को इंक्रीज कर देती हैं गैसेस, तो it's not just natural atmosphere. So what happens after that is the sun radiations, when sun rays come and they strike the earth, they're supposed to bounce out of the atmosphere। तो जब एयर की डेंसिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दीज टू कल्प्रिट गैसेस मेनली, तो ये जो सन रेज आती है ये एटमॉस्फेयर से escape नहीं करती, they keep bouncing back on the surface of earth। So when the sun rays will not escape out of the atmosphere, they stay in the atmosphere, that increases the temperature of the अर्थ, और हमारा जो क्लाइमेट सिस्टम है उसको इफेक्ट करती है। अब जब अर्थ का टेम्परेचर राइज करेगा, फिर उसके मसले स्टार्ट होते हैं, जो वेदर सिस्टम शिफ्ट होते हैं, अनप्रडिक्टेबल रेन्स और फ्लड्स आते हैं, ग्लेशियर्स मेल्टिंग होना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, दे आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। जो मेनली CO2 इमिशन है इंडस्ट्री से हो रही है, उसको कट डाउन करने के लिए प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, बट there are things that are not followed properly। तो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है साइड बाय साइड पूरी तरह से। ग्लोबल वार्मिंग का जो है ना, वो ओजोन लेयर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट ओजोन लेयर एक डिप्लीशन एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, वो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया और मैं उस पर आ जाता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इज अ डिफरेंट थिंग, एंड दैट एक्चुअली इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अर्थ एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड एवरीथिंग। जो है ये ओजोन लेयर वाला मसला, ये है बिकॉज ऑफ दी CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। CFCs आर सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन क्लोरीन और हैलोजेंस, फ्लोरीन वगैरह। और ये यूज़ होते थे पहले रेफ्रिजरेंट्स में, जो एयर कंडीशनर्स और फ्रिजेस वगैरह थे पुराने, तो उसमें डिफरेंट गैसेस मिक्सचर यूज़ होते हैं, उनमें ये CFCs यूज़ होते थे एरोसोल्स वगैरह में। तो जब आप उनको रिसाइकलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसमें ये जो रेफ्रिजरेंट गैसेस थे देवर सॉर्ट ऑफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, तो वो चले जाते हैं एयर में, एटमॉस्फेयर में। वहाँ जाके ये जो CFCs हैं, हैलोजन कंपाउंड, बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो हैलोजन्स हैं वो लाइट सेंसिटिव हैं, UV लाइट से वो ब्रेक हो जाते हैं रिएक्टिव एटम्स में। तो जब हैलोजन्स रिएक्टिव एटम्स में चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ द UV लाइट, विच और हैलोजन आते कहाँ से हैं बेसिकली, वो आते हैं यहाँ से CFC से। तो ये फिर ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब एज एन एग्जांपल, यहाँ पर ये इक्वेशंस आपको एक्चुअली इतनी याद नहीं करनी, लेकिन याद रखना है कि अगर कहीं इस तरह की चीज़ दिखाई हो तो आप समझ जाएं कि ये ओजोन लेयर डिप्लीशन दिखाई हुई है। ओजोन इज O3। दिस इज अ CFC कंपाउंड, बेसिकली ये डाइक्लोरोमीथेन है। ठीक है, इसमें दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन है। अब जब ये जाएगा ऊपर एटमॉस्फेयर से आगे ओजोन लेयर में, वहाँ UV लाइट से क्लोरीन के रेडिकल्स बनेंगे। दीज क्लोरीन रेडिकल्स विल देन ब्रेक डाउन ओजोन इनटू ऑक्सीजन, और ये चेंज हो जाते हैं, फिर ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। तो ओजोन लेयर इज ब्रोकन डाउन इनटू ऑक्सीजन, एंड दैट्स कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्लीशन। और इससे फिर जो मसले होते हैं वो आपको पता है कि जब सन रेज डायरेक्ट आती हैं सन पे, क्योंकि ओजोन फिल्टर्स आउट द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन, तो जब वो नहीं कर पाएगा पूरी तरह, तो फिर उसमें स्किन में कैंसर्स और ये सारे और प्रॉब्लम्स हैं। और द रिसेंट स्टडीज आर दैट ओजोन लेयर इज हील्ड अप एज वेल। ठीक है, इसकी डैमेजिंग भी होती है लेकिन हीलिंग भी होती है।
इसलिए मैंने कहा ना कि अब ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन का कॉन्सेप्ट है, अब थोड़ा ये एम्बिगुअस बन गया है, लार्ज स्केल डाउटफुल हो गया, तो इस पे अब क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, बट यू नीड टू रियली नो ऑल द डिटेल्स दैट आई रिटन हियर। नहीं ये बड़ा बात पता है क्या है, जो जो साइंटिफिक फिनोमिनाज है ना, हम तो उन्हीं को लेके चलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर को मसले नहीं हो रहे, ओजोन लेयर डैमेज करने के लिए ये गैस रिएक्शन है। इस चीज़ को समझें। ये तो आम जो जनरल जो लोग साइंस नहीं पढ़ते फॉर एग्जांपल, ठीक है, या जनरल नॉलेज के कॉन्सेप्ट है ना ये, तो वो तो अपनी चीज़ें मिक्स करके एक्सप्लेनेशन बताते हैं। हमने उसको फैक्ट्स के साथ लेके चलना है। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज नॉट द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो मेनली होती है बिकॉज ऑफ द टू मेन गैसेस, लाइक जो ऊपर मैंने अभी बताई, मीथेन एंड CO2। ठीक है ना, अगर आपको कोई पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर आप उसमें CFCs लिख दोगे तो नंबर काटेंगे आपके, क्योंकि ये जो CO2 और मीथेन है, ये लाइट सेंसिटिव नहीं है। ये सिर्फ ये करती हैं कि एयर की डेंसिटी चेंज करती हैं, उससे अर्थ का टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होता है, गर्मी होगी ज़्यादा, अनप्रडिक्टेबल वेदर सिस्टम्स होंगे, वाटर साइकिल्स होंगे, रेन्स होंगी, तो फिर हमारा जब लार्ज स्केल पे वेदर सिस्टम डिस्टर्ब करने में हमारा मेनली इन दो चीज़ों का काम है। ओजोन लेयर डिप्लीशन होने से जो हमारे अम, और मसले हैं वो होते हैं, नो डाउट, लेकिन एट लार्ज स्केल ग्लोबल वार्मिंग में उतनी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीशन कर रही है ये CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ये वैसे भी इनका अब यूज़ बहुत कम हो गया है लार्ज स्केल में। तो अब जो मैंने ग्लोबल वार्मिंग एक्सप्लेन की वो इधर है सारा, इसकी डिटेल्स। ओजोन लेयर डिप्लीशन भी मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। फिर फर्टिलाइजर से रिलेटेड आपने जो चीज़ याद रखनी है, एयर एंड वाटर वाले कॉन्सेप्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, द फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स विच आर इसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। ठीक है ना, ये वो केमिकल्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को हेल्प करते हैं, एंड दे आर लाइक कॉल्ड NPK फर्टिलाइजर। NPK फर्टिलाइजर्स इन आर लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। दीज एलिमेंट्स आर इसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ मेनली। एक तो NPK फर्टिलाइजर्स यूज होती हैं डिफरेंट टाइप की, फिर ये अमोनियम नाइट्रेट इज अ वेरी कॉमन फर्टिलाइजर, एंड यूरिया इज द कॉमन फर्टिलाइजर। तो ये प्लांट ग्रोथ में हेल्प करती हैं, बिकॉज जब आप ओवर कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स की उगाते हैं जगह पे, तो वहाँ पर नेचुरल जो मिनरल्स हैं सॉइल में, दे गेट यूज्ड अप। उसके लिए फिर आपको फर्टिलाइजर्स डालनी पड़ती हैं। और जब आप फर्टिलाइजर्स डालते हैं और ओवर यूज़ करते हैं, तो फिर उसका मसला होता है आगे, जिसको बोलते हैं ये यूट्रोफिकेशन। तो फर्टिलाइजर्स की जो मैंने इधर डिटेल बताई, फर्टिलाइजर्स की कोई इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं है, बस आपने ये 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। यूट्रिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, यूट्रिफिकेशन को आप समझेंगे क्योंकि इसमें भी स्टूडेंट्स जो है ना वो आंसर सही नहीं करते, ऑल दो सिलेबस में उन्होंने लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ यूट्रिफिकेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, बट जब आप क्वेश्चन उठा के देखें तो उसमें बहुत अच्छी खासी चीज़ें पूछ रहे होते हैं। आप ये जो यूट्रिफिकेशन है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको समझ लो। All right. So this eutrophication process or phenomena is actually, or something not right with my pen at the moment. So eutrophication happens because of excessive use of fertilizers in the field. So suppose अगर आपके पास एक क्रॉप फील्ड है, उस पे आपने क्रॉप्स ग्रो की हुई है, कोई भी है, वीट है, शुगर केन है, एनीथिंग, एंड यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में तो ये बहुत ह्यूज स्केल पे एग्रीकल्चर है। तो जब इतने लार्ज स्केल पे वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो फिर नेचुरली दे पुट लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू द सॉइल, गेट ग्रेटर यील्ड। मसला क्या होता है कि क्रॉप और फील्ड एरियाज के साथ मोस्टली वाटर बॉडीज होती हैं क्रॉप्स के लिए। तो इफ यू गॉट अ वाटर बॉडी और pond or any system adjacent to the field, so with the rainwater, these fertilizers get leached into the water body adjacent to the field area. तो आपने याद क्या रखना है, that the water bodies adjacent to the large field areas has
हायर मिनरल कंटेंट, इनके अंदर जो मिनरल कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स यूज़ की हुई है आपने क्रॉप्स में, वो बारिश के पानी के साथ साथ दे जस्ट कम इनटू दिस एरिया, एंड देन what happens afterwards, as the mineral content of the water increases, this leads to the growth of algae on the surface of water. जो algae है वो वाटर प्लांट है, वो पानी में ही होगा और वो वाटर के सरफेस पे ग्रो करते हैं। ना एलजी की ग्रोथ से पहला जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है वो क्या है कि जो सन रेज हैं वो वाटर में एंटर नहीं हो पाते, इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ डार्क डाउन देयर। तो एक तो सन रेज नहीं आएंगी, तो ऐसे वाटर में जहाँ पे सन रेज नहीं आ रही, नेचुरली ऑक्सीजन की सप्लाई भी ब्लॉक होगी, क्योंकि ये बड़ी डेंस ग्रोथ होती है प्लांट की इसके सरफेस पे। तो फिश का या एनिमल का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बट द रियल प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट्स आफ्टर दैट। और वो रियल प्रॉब्लम ये है कि जब ये एलजी प्लांट है ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं तो दे डाई डाउन ऑन द surface of water. So as the algae die, the bacteria in the water, they actually decompose these dead plants. तो जब ये बैक्टीरिया उन डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं तो उस प्रोसेस में दे यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, सो बैक्टीरिया यूज ऑक्सीजन हीट आउट द डेड एलजी और प्लांट्स। तो जब वाटर का ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा तो वहां पर फिश ग्रो नहीं करती, सर्वाइव नहीं करेगी। द फिश यूजेस दिस ऑक्सीजन इन द वाटर which is actually being used up by the bacteria. This entire phenomena is called eutrophication. मैं एक दफे इसको रिपीट करता हूँ। Excessive use of fertilizers in the fields lead to the increase in mineral content of the water bodies adjacent. This starts increasing or growth of the plants on the water surface which are called algae. एलजी की ग्रोथ से पहले तो सनरेज ही ब्लॉक हो जाती हैं, और जब एलजी की डेथ होती है प्लांट्स ने ज़ाहिर है अपना लाइफ साइकिल पूरा करके, तो फिर वाटर में बैक्टीरिया डिकम्पोज दें यूजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड दैट डिक्रीजेज एंड फिश कैन नॉट एक्चुअली ब्रीथ प्रॉपरली। तो ऐसे पानी में एनिमल्स या फिश सर्वाइव नहीं करते। अगर आप पंजाब साइड पे जाएं थोड़ा, इधर तो चूंकि वाटर बॉडीज इस तरह नहीं होती जगह जगह, लेकिन अगर आप सेंट्रल पंजाब की साइड पे जाएं तो एवरी विलेज हैज़ ह्यूज पॉन्ड्स नेचुरल जो साथ साथ होते हैं, और देर ऑल कवर्ड विद ग्रीन प्लांट्स। वो इसीलिए होता है कि वो फर्टिलाइजर्स इतनी यूज़ कर रहे होते हैं फील्ड्स में कि वो उनके पानी में सारा टाइम मिनरल्स होते हैं, और वो ऐसे पानी में फिर इवन फ्रॉग्स की भी सर्वाइवल मुश्किल होती है। अब ये जो मैंने स्टोरी आप लोगों को सुनाई है ये सारा इधर लिखा हुआ है। Excessive use of fertilizer, especially these nitrates, increase the mineral content. This results into increase in the algae growth, and this blocks the light from entering the water. As the algae die, the bacteria decompose these plants and use oxygen from the water, and decrease in oxygen leads to the death of the fish in the water, right? अब ये था वो सारा एयर एंड एनवायरनमेंट वाला पीडीएफ जो मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। और कल भी मैंने कुछ चीज़ें क्लास में आपको एयर एंड वाटर से रिलेटेड बताई थी, आज भी स्टार्ट में बताई हैं, और फिर ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इनमें कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का तो पूछ लें। एक और छोटी सी मैं चीज़ कराऊंगा उसके बाद बस खत्म। अच्छा, चले मैं उस पर लिखता हूँ। इस हैंड आउट पे कोई क्वेश्चन तो नहीं, चले मैं इसको बंद नहीं करता। बिफोर आई एक्सप्लेन दिस लास्ट थिंग, एक चीज़ मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा, लेकिन आप लोग भी बेटा नोट कर लें नेक्स्ट वीक के लिए। अब आपने नेक्स्ट इन क्लास में सिंक्रोनाइज रखने के लिए जून 2020 और 2022, ये 3 साल के पेपर्स अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर लें। ये 3 पेपर नहीं है, लाइक ऑल पेपर 4 to 2 MCQs और 6 to IGCSE वाले। जो ओ लेवल वाले हैं वो अपने इसी तरह से पेपर 2, 1, 2 and 4 करें, सेकेंड वेरिएंट इन ईयर्स के।
क्योंकि नेक्स्ट वीक में I'll move on to discussing MCQs and ATP पेपर, ठीक है। ATP के साथ में कुछ एक दो चीज़ें ऐड करूँगा। तो ये अब आप लोगों ने वीकेंड पे करने हैं, मंडे को आपका मॉक भी है। अब द थिंग इज के बाय दी 22nd or 3rd of June, this month perhaps April, you guys should be done with all the papers till 2024 at least. अब आपने टीचर्स का वेट नहीं करना है कि हम आपको बताएं कि बेटा आप ये वाला पेपर करो, ये करो, ये करो। आई होप कि आप लोगों ने पास पेपर बुकलेट्स ले ली हुई हैं और 5 साल की एटलीस्ट, और आप पेपर स्टार्ट करें, ठीक है ना। पेपर जो भी पेपर करें उसको टाइम रख के करना है, टाइम के अंदर ख़त्म करना है। मार्क स्कीम से आप अपने अपने एमसीक्यूज तो चेक कर सकते हैं। एंड द वे यू शुड बी प्रिपेयरिंग एट दिस स्टेज इज़ लाइक मिक्स एंड नॉट जस्ट वन स्ट्रेटजी, दैट इज मेमोराइज एंड रिवाइज नोट्स एवरी डे। लाइक ये आपकी डेली जो रूटीन होनी चाहिए ना, मैं अपनी केमिस्ट्री के हिसाब से बात करूँ। रिवाइज नोट्स प्लस सॉल्व पेपर, ये आपको मैक्सिमम 2 या 4 दिन तक करना चाहिए। बट उसके बाद यू शुड बी डूइंग पेपर्स मेनली सारा टाइम। तो जब आप पेपर्स कर रहे हैं और आपके एमसीक्यूज में मार्क्स ठीक नहीं आ रहे या जिधर भी मार्क्स कट रहे हैं, फिर आपने नोट्स में जाके उसी चीज़ को रिवाइज करना है बस। But if you're not able to go above 70% marks in all these papers, then you should stop doing papers and revise notes all the time, and then start papers again. लेकिन अगर एक बंदा इस स्टेज पे सिर्फ पेपर सॉल्व कर रहा है और एक बंदा इस स्टेज पे सिर्फ नोट्स रिवाइज कर रहा है, दोनों गलत कर रहे हैं। आपने इनको बैलेंस आउट करना है। जब आपके पेपर्स में मार्क्स जो है वो 70% 80% को क्रॉस करना शुरू हो जाए, तो फिर आप मेनली पेपर ही करें। बट यू नीड टू गिव अ ब्रेक। अगर आपसे पेपर्स नहीं हो रहे तो आपने इसको रोक के नोट्स रिवाइज करें, फिर पेपर्स पे जाएं, तो आप देखोगे कि वो ठीक होना शुरू हो जाती है चीज़, ठीक है ना। उसमें स्टक नहीं होना आपने, और टाइम रख के करना। जो भी करना है पेन यूज़ करें, पेंसिल से मत सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम में पेन यूज़ करना है। अच्छा, अब ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें। आई थिंक मैंने कई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में ये चीज़ बताई थी, बट मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ, इसको लिख लें। दिस थिंग, और ये मेनली एटीपी के पेपर्स में ये चीज़ आती है कैलकुलेशन वगैरह में। दिस कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन। अभी जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये जो हम लिखते हैं लाइक CuSO4.XH2O, इस तरह से। तो दिस वैल्यू ऑफ एक्स हेयर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन अगर पेपर में इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ती है तो आपने लिखना है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर attached with 1 mole of salt। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अटैच्ड विद 1 मोल ऑफ सॉल्ट, मीनिंग कि अगर देखें मेरे पास ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, तो उसमें वैल्यू ऑफ एक्स इज लाइक 5। सो CuSO4 डॉट जब आप 5 लिखते हो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हेयर, इसकी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो है 5। ठीक है, ये वेरिएबल होता है तो इस केस में ये 5 है। अच्छा, मेरे को क्वेश्चन है, मुझे नजर नहीं आ रहा। Apparatus that is just like evaporating dish but does around the bottom. क्रूसिबल बेटा, क्रूसिबल दैट्स लाइक मेनली यूज्ड फॉर हीटिंग, और ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाले एक्सपेरिमेंट्स में ही वो यूज़ करते हैं। हम क्रूसिबल बोलते हैं, इस तरह का होता है और इसके ऊपर ऐसे लेड होती है सिरामिक टाइप, और उसको हम हीटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आपने सॉलिड्स को हीट करना होता है तो उसको हम एवेपोरेटिंग डिश में नहीं हीट करते। एवेपोरेटिंग डिश इज नॉट कवर्ड फ्रॉम द टॉप, इट्स मेड अप ऑफ सिरामिक। एवेपोरेटिंग डिश हम यूज़ करते हैं जब आपने किसी सोल्यूशन को इतना हीट करना है कि उसको एवेपोरेट करके पीछे सॉल्ट बच जाए। जब आपने किसी सॉलिड को हीट करना है तो उसमें हम क्रूसिबल में डाल के हीट करते हैं, क्योंकि इट्स कवर्ड। अदरवाइज जो सॉलिड होता है वो ऐसे बाहर स्प्लैशिंग होना शुरू हो जाती है, उसको जैसे पॉपकॉर्न होता है, तो उसको रोकने के लिए भी जस्ट यूज दिस क्रूसिबल।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बेटा ये मैंने टाइम बचाने के लिए लिख दिया है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वैल्यू इज 5। ये कोई केमिस्ट्री की टर्म नहीं है, पूरा ही लिखेंगे पेपर में। तो लाइक कॉपर सल्फेट में वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज 5। अब अगर कहीं आपको पेपर में ये दिखाना पड़ जाए कि व्हाट इफ कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट वाज हीटेड स्ट्रांगली, तो ये बना देगा कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O। जितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो उसमें से एज अ गैस निकल जाएगा, ये सॉलिड बच जाएगा। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट ब्लू है, ये वाइट है। तो डिफरेंट सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज डिफरेंट। इनफैक्ट सोडियम कार्बोनेट है फॉर एग्जांपल, तो सोडियम कार्बोनेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज 10। ठीक है, इस तरह से अगर आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट का मैस मिल जाए, ठीक है, और उसमें अगर आपको एक्स की वैल्यू नहीं पता, तो यू कैन एक्चुअली फाइंड दैट बाय फाइंडिंग आउट द मैस ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट और उसमें से वाटर कितना निकला है। ठीक है, तो उनकी रेशियो बना के हम फिर इसकी वैल्यू ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। बट ये हम एटीपी के पेपर में नेक्स्ट वीक में एक दो क्वेश्चंस के अंदर इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर। तो बस ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा था कि आई थिंक मैंने हाइड्रेटेड सॉल्ट कॉपर सल्फेट के साथ इसको की बताया था, लेकिन आई थॉट के जस्ट ऑन सेफ्टर सेफर साइड में इसको फिर से रिपीट कर दूं थोड़ा। तो अब देखें, जो आपका मेन है ना, मेन तो क्या सारा सिलेबस कंप्लीट है। कोई छोटे मोटे कोई रैंडम पॉइंट्स या ऐसी चीज़ें होंगी ना, वो हम नेक्स्ट वीक में पेपर्स के साथ साथ कैचअप कर लेंगे। अगर किसी बच्चे ने जैसे लेट ज्वाइन किया है, कोई रिकॉर्डिंग्स कुछ मांग रहे हैं, वो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कल तक दे दूं जो पूछ रहे हैं मुझसे। लेकिन अ, अभी पेपर करते हुए अगर कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ आती है तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। बट ऑल द मेन कॉन्सेप्ट्स हैव बीन कवर्ड। मॉक की पूरी तैयारी करें, उसमें एयर एंड वाटर भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना, कोई टॉपिक मिस नहीं करना। I explained in the class that your mock would actually have only MCQs एंड थ्योरी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। एटीपी उसमें मैंने नहीं डाला। एटीपी का एक सेपरेट हम टेस्ट रखेंगे 23rd 4th या 22nd अप्रैल के पास। तो बस ये दो चीज़ें होंगी। 1 आवर 30 मिनट का टेस्ट है, तैयारी करके देना बेटा। जो ग्रेड इसमें आप लोगे ना, वही रफली आपका तकरीबन ग्रेड बनेगा, या उसमें एक आध ग्रेड इम्प्रूव होगा। तो अगर आपने पढ़े बगैर दिया, टाइम वेस्ट होगा, दिन भी ज़ाया हो जाएगा। उसकी जगह फिर हमको पेपर कर लेंगे। जो पेपर्स मैंने बताए आई पोस्ट इन द ग्रुप, वो आप लोगों ने वीकेंड पे ट्राई करने, नेक्स्ट वीक में हमने वही डिस्कस करने। यू गाइस कैन सेंड इन योर डाउट्स, एमसीक्यू जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसके पिक्चर लेके सारे क्वेश्चंस की मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इनबॉक्स। नॉट रिपीटेडली, मतलब पूरा दिन नहीं भेजें, वो उसका फ़ायदा नहीं, मुझे भूल जाता है फिर। अगर आपके 10 डाउट्स हैं, 7 डाउट्स हैं, आप सारों की पिक्चर एक साथ लेके मुझे सेंड कर दें, देन वेट टिल नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट सुबह तक रिप्लाई कर दूँ। जो क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा बड़े क्लास में समझ लें। ठीक है, बस मेहनत करें शाबाश। कोई डाउट और क्वेश्चन है पूछ लें एंड पे, इसमें इसको ना रोक रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, दैट्स ऑल देन, अल्लाह हाफ़िज़।